علم و عمل برادر ذی وقار پیر محمد عبدالرشاد صاحب، زینت بزم وفا، حامل نور حیات برادر ذی وقار پیر حبیب الرحمان صاحب، عالی مرتبت پیر فرزند حسین صاحب سجادہ نشین سیاہ شریف، میرے کرم فرما، میرے ہمدم، میرے ساتھی علماء کرام، میرے جذبات، احساسات اور خیالات میں حوصلوں کو توانائی بخشنے والے آپ سب میرے ہم سفر ساتھی، اس سے مبارک کہ یہ آخری محفل اور آخری محفل کے یہ آخری چند لمحات ہیں جن میں کچھ گزارشات، کچھ مناجات، کچھ التجائے تحصیل حسنات، کچھ اہتمام نزول برکات ہیں۔ یہ دو چار باتیں چند لمحات ان میں صرف ہوں گے، شاید وہی لمحات میری اور آپ کی زندگی کی شادمانیوں کی بنیاد ثابت ہوں۔ چند لمحات جو گزری زندگی کی بے رونق کے احتجاج میں برکتوں کو ایسا سمو دیں کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اندر باہر نیکی کا نور پیرا دیتا ہوا نظر آتا۔ اس رواں دواں زندگی، فنا ہونے والی زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی، اس بے آبرو زندگی، اس بے لطف زندگی، اس بے مزہ زندگی، محبوب سے ہٹی ہوئی، کٹی ہوئی، مٹی ہوئی زندگی میں وہ بہار عطا کر دے جو وجہ سکون و قرار ہو، جو محبوب کردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا سامان ہو، وہاں شرمندگی، ضلالت، رسوائی، پسپائی، خجالت کے بدلے قبولیت اور محبت، نوازش، عنایت، کرم، مہربانیوں کے سائے میں بیٹھنے کا ارشاد عالی نصیب ہو۔ جن حضرات نے میرے بارے میں کچھ اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، میں ان القابات کا اہل نہیں ہوں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ مومن جب ایمان کی لگن سے، خلوص کی تمازت سے، گرمی سے جب دوسرے مومن کے متعلق محبتوں کے نور میں دھلے ہوئے الفاظ پیش کرتا ہے تو وہ القاب یا درجات کی نشاندہی نہیں ہوتی، وہ مومن کے دل و روح سے نکلی ہوئی وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ نبی پاک کی نسبت سے قبول فرما دیتا ہے۔ کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا یہ سب میرے حق میں وہ خوبصورت، حسین و جمیل دعائیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی جو میری بخشش اور میری عزت، میرے دوستوں کے ساتھ میری قبولیت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میرے لیے اس سے اور کیا بڑی سعادت ہوگی کہ بے شمار اہل ایمان، بے شمار اہل اخلاص میرے لیے اللہ کے حضور آنسوؤں کے دیے جلا کر، دل کے دامن بچھا کر میرے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ بڑی سوغات ہے اور میرے لیے بڑا سعادت آخرت ہے۔ خاندان والے عموماً انکار کر جایا کرتے ہیں، لیکن جب اپنا ہی خاندان محبت کے ساتھ قریب آئے تو ان کی قربت خدا کی رحمت کی ایک دلیل بن جاتی ہے۔ میں اپنے دائیں بائیں، ارد گرد جب دعا گو دیکھتا ہوں تو بسا اوقات خوشی سے سر جھک جاتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گاتا ہوں کہ تو نے اتنا کرم فرمایا، میں تنہا اپنے لیے شاید کچھ کما نہ سکتا، لیکن اپنے ایمان والے بندوں کو تو نے
राहतें अता फरमाई। जिंदगी देकर जिंदगी को गुजारने का एक जामे मंसूबा दिया और उस मंसूबे में इंसान को अपनी ख्वाहिशें वसीयत करने का हुक्म नहीं दिया। फरमाया जो जिंदगी देता है वो जिंदगी गुजारने का उसूल भी देगा। ये ना समझना कि जिंदगी तुम्हें दे दी है और आज़ादी दी है, मैं तुम्हें आज़ादी जरूर दूंगा, लेकिन अपने बनाए हुए उसूलों के अंदर रह के जीने की आज़ादी तुम्हें दूंगा। मेरी दी हुई जिंदगी से फायदा उठाने वाले खुश नसीब हो, मेरे दिए हुए उसूल अपनाओ, मेरे दिए हुए मंशूर अपनाओ, मेरा दिया हुआ दस्तूर अपनाओ। अगर जिंदगी मैंने दी है तो दस्तूर भी मेरा होगा, अगर जीना मैंने दिया है तो मंशूर भी मेरा होगा। मेरे घर से खाते हो, मेरा दिया हुआ पीते हो, मेरी दी हुई जिंदगी की शब और रोज काटते हो, मेरी दी हुई जिंदगी के तमाम नश्व और निमा की कैफियत से खुद को सरशारो सरफराज किए हुए हो, तो याद रखो फिर मेरी ही दी हुई जिंदगी की वो बहार जिसे कानून मंशूर दस्तूर कहा जाएगा, उसी के दायरे के अंदर रहना होगा। और अगर तलाश करोगे कि वो मंशूर कहाँ है, वो दस्तूर कहाँ है, वो प्रोग्राम कहाँ है, वो उसूल कहाँ है, वो उसूल कहाँ है और उन उसूलों की जामियत क्या है, इलाही हम तुझी से पूछते हैं कि जिंदगी देने वाले हमारी जिंदगी को कामयाबी के साथ हमकनार देखना अगर तू पसंद करता है तो फिर जो तूने उसूल दिए हैं वो उसूल कहाँ हैं? तो फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यूरोप में रहो तो उसूल मेरे होंगे, मगरब में रहो तो उसूल मेरे होंगे, मशरक में रहो तो तकाज़े मेरे होंगे, ज़मीन के जिस खित्ता और गोशा सहरा और दरिया से गुजरोगे दस्तूर मेरा होगा, जिस जंगल में डेरा लगाओगे मंशूर मेरा होगा, रातें होंगी तो दस्तूर मेरा होगा, दिन होगा तो दस्तूर मेरा होगा, ताजवर भी रहोगे तो दस्तूर मेरा होगा, सुखनवर रहोगे तो कानून मेरा रहेगा, गदागर रहोगे तो सुख तो कानून मेरा रहेगा, गरीब रहोगे तो कानून मेरा होगा, अमीर रहोगे तो कानून मेरा होगा, हाकिम और महकूम होगे तो कानून मेरा होगा, ताजिर रहोगे तो कानून मेरा होगा, बकरियां चलाओगे तो कानून मेरा होगा, दुनिया की हुक्मरानी करोगे तो कानून मेरा होगा, देहातों में रहो तो कानून मेरा होगा, झोंपड़ी में रहो तो कानून मेरा होगा, और शहरों में रहो तो कानून मेरा होगा, मोहल्लात में रहो तो कानून मेरा होगा। और रब करीम वो कौन कानून है जो जिंदगी के लम्हे लम्हे पर हावी है? तो फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जीना है तो बस मेरे उसूल में जियोगे तो तेरे उसूल की जामियत
कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ये फरमाया क्यों? इसलिए फरमाया कि मैंने जिंदगी दी तो प्यार की वजह से दी है। मैंने जिंदगी दी है तुम्हें इंसानों, अकल, इल्म, शक्ल, अकल सब कुछ दिया। हरकत, सकनात, सुनना, बोलना, उठना, बैठना, जमाल, कमाल, खिसाल, शमाइल, खसाइल, फजाइल, इल्म, अमल, ज़ौक़, कैफियत, उन्स, उल्फत, इज्जत, हया, वफा सब कुछ देने के बाद अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें देखूं, मोहब्बत से देखूं, तो मेरी चाहते हो कि मेरी मोहब्बत कायम रहे, तो मेरे महबूब की अदा अपनाओ ताकि तुम हर वक्त मुझे अपने लगो। हर वक्त तुम मेरे अपने नजर आओ। इसलिए चाहता हूं कि मेरे महबूब की सीरत, मेरे महबूब की अदाएं, मेरे महबूब की हया, मेरे महबूब की वफा, मेरे महबूब की सदाकत, मेरे महबूब की मोहब्बत, मेरे महबूब की दयानत, मेरे महबूब की मरम्मत, मेरे महबूब की नबूवत के जलवे ये आप पर पहरा देते रहे। कहीं हया नजर आए, कहीं सदाकत नजर आए, कहीं वफा नजर आए, कहीं सजदे नजर आए, कहीं आंसू नजर आए, कहीं फरियाद नजर आए, कहीं इल्तिजा नजर आए, कहीं कयाम नजर आए, कहीं रुकू नजर आए, कहीं सजदा नजर आए, कहीं तिलावत नजर आए, कहीं इबादत नजर आए, कहीं कोई लेटा हुआ नजर आए, कोई बैठा हुआ नजर आए, कोई चद्दर नजर आए, कोई कपड़ा बेचा नजर आए, कोई तलवार बदस्त नजर आए, कोई कुरान हमायत किया हुआ नजर आए, तो इन सबको जब मैं देखूं तो हर एक पर मेरे महबूब की मुख्तलिफ अदाओं में से कोई अदा तुम पर पहरा दे रही हो। तो जब तुम्हें देखूं तो सबसे पहले मैं अपने महबूब की अदा देखूं, मैं देखूं कि किस किस वजूद पर मेरे महबूब की अदाएं पहरा दे रही हैं। तो जिस वजूद पर मेरे महबूब की पहरा देगी, वजूद तुम्हारा ही सही लेकिन मरकज मेरे प्यार का होगा। वजूद तेरा सही, अकल तेरी सही, कब्जा मेरा होगा, जबान तेरी सही, बोली मेरी होगी, कान तेरा ही सही, शलवाई मेरी होगी, कदम तेरी सही, रफ्तार मेरी मर्जी की होगी, दिल तेरा सही, जलवे मेरे होंगे, सीना तेरा होगा, इश्क की गर्मी मेरी होगी, जिगर तेरा होगा, मेरे प्यार के तीर होंगे, आंखें तेरी होंगी, आंसू मेरे होंगे। इसलिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और देखो आगे इस कुरान की तफसीर को, कुरान से तफसीर, आयत के पहले हिस्से की तफसीर दूसरे हिस्से, इस आया करीमा का पहला हिस्सा, इसके दो हिस्से, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुकम्मल हो गई ये बात। आगे तफसीर, लकुम की तफसीर आगे है, आपके लिए, अलबत्ता तहकीक आपके लिए। तो ये लकुम ये खिताब का सीगा है, जमा की ज़मीर जमा का सीगा है, मुखातिबीन जमा है। लकुम में किसी को अल्लाह ने खारिज नहीं फरमाया, और मदीना तैयबा से लेकर सुबह क़यामत तक जितने कलमा पढ़ने वाले हैं इन सबको लकुम में शामिल करवा दिया है। वो मक्की हूं के मदनी, वो अरबी हूं के अजमी, वो एशियाई हूं या यूरोपियन, वो फर्शी हूं के अर्शी, जो मुकल्लफ है, जिसे अक्ल होशो खिरत इल्म अमल की नियामतों से आरास्ता फरमा दिया गया है, वो लफ्ज़े लकुम के खिताब में शरीक है। लेकिन इसकी तफसीर आगे है, फरमाया लिमन कान यरजुल्लाह। तफसीर कुरान बिल कुरान, आयत का पहला हिस्सा उमूमियत पर दलालत कर रहा है, कोई फर्द खारिज नहीं, मुमकिनात का कोई फर्द, कायनात का कोई जर्रा इस लकुम की जामियत और उमूमियत से खारिज नहीं है। लेकिन मखसूस मिन गुलफाज का कानून देखेंगे, वो क्या है? लिमन कान यरजुल्लाह, ये उसवा हसना किसके लिए है? लिमन कान यरजुल्लाह, बस सीधी सी बात, सीधी सी बात। मिसाल क्या है? मेरे घर में आना चाहते हो? तेरा मेरा रास्ता ही नहीं जी, कोई टेलीफोन नंबर? फरमाया हर एक को हम नहीं दिया करते। आप
آپ کا گھر تو سب کے لیے کھلا ہے، فرمایا کھلا سب کے لیے، مگر اندر سب کو نہیں آنے۔ ہم پردہ دار ہیں، پردے میں محرم کے سوا کوئی نہیں آیا۔ میرا گھر کھلا ہے مگر اپنوں کے لیے۔ خدا بندہ اگر یہ تیرا گھر اپنوں کے لیے ہے تو لقوم میں تم نے تقسیم کام کی ہے کہ کون تیرا اور کون نہیں تیرا۔ لقوم میں دعوت عام ہے، لنگر تم نے عام کا لگایا اور پھر فرماتے ہو کہ دروازہ کھل گیا، لنگر عام ہے، دسترخوان بچھ گیا اور فرمان یہ ہے کہ روٹی سب نہیں کھائیں گے۔ تو تو نے دسترخوان بچا کے لقوم کہہ کے عام اعلان کیا ہے، تو فرمایا نہیں، لمن کان یرجو اللہ، دسترخوان تو ان کے لیے جو مجھ سے پیار کریں گے۔ دسترخوان تو ان کے لیے ہے جو مجھ سے پیار کریں گے، دروازہ تو ان کے لیے کھلا ہے جو مجھ سے پیار کریں گے۔ تو خداوند عالم لقوم میں کیا فرق ہے، تیرا کون تو کون نہیں؟ تو فرمایا جو ادائے رسول لے کے آئے گا وہی تو میرا ہوگا۔ لہذا کھولو دروازہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ دو نشانیاں دیکھتے جاؤ، مجھے کون چاہتا ہے، قیامت کی عزت کس کو محبوب ہے۔ یہ دو چیزیں جب اس کو کم کریں گی تو وہ اس درجے کو حاصل کرنے کی سعی کرے گا، کوشش کرے گا۔ تو ہم کہاں سے تلاش کریں، کہاں جائیں، یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ تو فرمایا مت بھٹکو، ایک ہی منزل پہ پہنچو، ایک ہی منزل پہ پہنچو۔ وہ کون سی جگہ؟ فرمایا میری رضا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عادت میرے نبی کی، محبت میرے نبی کی، صورت میرے نبی کی، سیرت میرے نبی کی، چلنا میرے نبی کا، بولنا میرے نبی کا۔ تو بات اتنی ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ قرآن بھی میرا ہے، محبوب بھی میرا ہے، لیکن ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک خاموش قرآن ہے اور ایک بولتا قرآن ہے۔ ایک خاموش قرآن ہے اور ایک بولتا قرآن ہے۔ فرمایا یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ خاموش ہے، تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، بولنے والا قرآن جو کہے گا وہ مانتے چلے جانا۔ میں نے کل آکسفورڈ یونیورسٹی اپنے مرزا صاحب کے ایک عزیز تھے، انہیں میں ان کی مائیت میں مرزا صاحب کے عزیز کو ملنے کے لیے گیا، تو وہاں ایک انگریز نوجوان لڑکا دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں تو اسلام میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ انگریز اور پی ایچ ڈی اسلام میں؟ ہاں۔ کہاں گئے آپ؟ 4 سال عراق میں رہا، 1 سال اسکندریہ کی یونیورسٹی میں رہا، عربی بول لیتا ہوں، قرآن سارا پڑھ چکا ہوں، تفاسیر سے پڑھا ہے، حدیث پڑھ چکا ہوں، فقہ پڑھ رہا، دین پر میں سب کاوشیں اپنی جمع کر کے میں اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا کر میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے پی ایچ ڈی کی سند ملے گی۔ میں نے کہا کہ آپ تو بہت کوشش کر چکے ہیں، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، بارے گرانہ گزرے تو میں ایک سوال پوچھوں تم سے؟ آپ پوچھ لیں۔ بڑے دعوے سے اس نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا کوئی آدمی کسی کی کتاب پڑھے تو اس کتاب کے برکے میں مصنف کی تصویر ہوتی ہے۔ میں نے جو سوال دعویٰ تھا وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کتاب پڑھے تو حروف صدور کے پردے میں مصنف آخر کی صورت ہوتی ہے، اور جب کوئی پڑھتا چلا جائے تو مصنف کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ بتاؤ قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد تو عالم کی مختار شخصیت نبی اعظم کے متعلق تم نے کیا سوچا؟
शरीयत पढ़ डालो उलमा से मदद। ये उलमा जब गिरफ्त करने पे आए तो वो फिर ये भी दे दे कि ये हमारे पीर साहब थे, उन्हें किताब के पीछे जाना है, इसलिए पहले ही मदद। लेकिन बाद औकात पीर ऐसी बात कह जाते हैं, मगर वो पीर साहिब इल्म हो, जिसके पास इल्म लदुन्नी और इल्म शरीयत दोनों हो, वैसे बेचारा कोई पीर हो उसकी बात में नहीं करता। और ये याद रखें कि पीर बेचारा कभी नहीं, मेरी बात समझे आप? जो पीर होगा वो बेचारा नहीं होगा, तो वो तो लोगों का चारा है, खुद बेचारा क्यों है? वो बेचारा नहीं होता। अरे जिसे अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में कबूलियत की शरत मिल जाए वो बेचारा है। जिसे दो आलम का सहारा उसका चारा बन गया वो लोगों का सहारा है, वो बेचारा नहीं। मगर मैंने जो बेचारा कहा है ये भी हिकमत की बात। बाद पीर बेचारे, अगर कोई ऐसी बात कह दे जिसे शरीयत कबूल न करे तो उस पर गिरफ्त लाजमी है। मगर इरफान की मंजिलें तय करने वाला कोई बात ऐसी कह दे तो उस पर उलमा को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, मुमकिन है कोई हिकमत हो। अब मैं अगर इस तरफ जाऊंगा तो फिर बात बढ़ जाएगी। मैं अपने ही मंजिल पे रहना चाहता हूं। और याद है मैं कहां से मैं गायब हुआ था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। माशाअल्लाह, मैं भूल गया। लेकिन मैं शरीयत के हवाले से पूछता हूं, मैं कुरान पढ़ना सवाब है। मैं कल कसीदा खुदा शरीफ की शरह पढ़ रहा था, मेराज के सिलसिले में उसमें एक शेर था और उसमें तफसीर थी कि किस तरह आसमान से गुजर के चले गए। तो उसमें मुल्ला अली कारी के हवाले से दलाइल से मुख्तलिफ इस उम्मत के शाह सवार और मकबूलाने बारगाह इलाही बड़े बड़े कामिल मुजतहिदीन के हवाले मौजूद थे कि ऐसे औलिया अल्लाह भी इस दुनिया में आए हैं, नबी की बारगाह में जो मकबूल हुए, कि उनके मतलब वाकया लिखा है कि हजरे अस्वद को चूम कर जब चले तो अलिफ लाम मीम शुरू किया और जब वापस हजरे अस्वद तक पहुंचे तो 1,00,000 मरतबा कुरान खत्म कर चुके थे। सोचो तो, लिखने वाले वो लोग हैं कि जो मर्जी इलाही के बगैर कलम चलाते ही नहीं, जिस जगह वो रुक जाते हैं सरकार दो आलम से पूछ के चलते हैं, उन लोगों ने लिखा है। और फिर लिखते हैं कि ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जो 24 घंटों में 3,00,000 मरतबा कुरान पढ़ते हैं। ये तो मकबूलीन की बारी है, उनके मतलब ये फैसला। लेकिन कहीं है पूरी शरीयत कि जिसने कुरान नहीं पढ़ा वो जन्नत नहीं जाएगा। और कोई नहीं बोलता जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप ही बोले भाई है गई शरीयत। मैं उलमाए किराम से अपनी तस्दीक चाहता हूं कि है कहीं कुरान अजीम के मतलब कि जिसने कुरान नहीं पढ़ा वो जन्नत नहीं जाएगा। महरूम सवाब जरूर है लेकिन ईमान से खालिद नहीं। सवाब से महरूम है मगर ईमान उसके जिस्म से खारिज नहीं हुआ। तो लोग सवाब के जरिए शायद जन्नत जाए या ना जाएंगे अलग बात है, क्योंकि सवाब की बहुत सूरतें हैं, लेकिन ईमान के जरिए जन्नत नहीं जाएंगे। सवाब का ताल्लुक तलावत से है, सवाब का ताल्लुक तलावत से है, सवाब का ताल्लुक सजदे से है, सवाब का ताल्लुक नमाज, किरात, जिहाद, इन सब चीजों से है।
का छपा होगा, लाहौर का होगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद का होगा, यमन का होगा, लबनान में छपा होगा, मिस्र में छपा होगा। तो हम मिस्र में छपे हुए कुरान को पढ़ते हैं, मगर वो लोग भी हैं कि वो कुरान को सूरत रसूल में पढ़ते रहे। उन्होंने किसी मतबे से नहीं पढ़ा, वो रुख रसूल को देखकर कुरान पढ़ते चले गए। जिधर रुख रसूल की रहनुमाई हुई, कुरान उधर फिरता चला गया। तो मालूम हुआ कि जब रब्बुल आलमीन ने दस्तरखान बिछाया अपने कुर्ब का, अपने प्यार का, मग़फ़िरत का, मोहब्बत का, जलवाए इरफान की वुसअत का, प्यारो उनसो उल्फत का, कैफियत जज्बो मस्ती का दरवाजा बिछाया, तो फरमाया दुनिया और दीन में, ज़ाहिर और बातिन में, दुनिया और आखिरत में, बदन तन कल्ब और कालत में, अक्ल सूरत सीरत में, उठने बैठने चलने फिरने में, जो आदमी मेरा मकबूल होगा वह इस दस्तरखान पर बैठेगा, और मेरा कौन होगा जिसमें मेरा अपने महबूब का जलवा नजर आएगा। इसलिए फरमाया जीना है तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बस जीना है तो ये एक दस्तूर है, और इस दस्तूर का नाम आदत मुस्तफा है। जीना है तो मंशूर के साथ जियो, और मंशूर क्या है? फरमाया वो मेरे महबूब बैठे तो मेरा मंशूर, उठे तो मेरा मंशूर। फरमाया इसलिए फरमाया कि यूरोप में जाओगे ना, यूरोप में जाओ तो लिबास बदलो तो बदल सकते हो, मेरे मुस्तफा की आदत न बदलना। लिबास बदल सकते हो। मैं ये भी अर्ज कर दूं, बाद लोग लिबास पर बड़ी शदोमत करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये सुन्नत है वो सुन्नत है, शमले इधर रखो, इतना इधर करो, पगड़ी इतनी लंबी हो, मोटी इतनी हो, पेशानी इतनी नंगी हो, और ऐसा वैसा, ये सब मुस्तहब्बात है। ये सब मुस्तहब्बात हैं। निस्बत रसूल से उसी तरह के लिबास पहनोगे तो सवाब होगा, और कोई नहीं पहनता तो दर्जे में कमी नहीं आएगी। जेड़े नहीं पगड़ियां बनते तुम जोर ला सुभान अल्लाह को, मैं कितनी छूट दे रहा हूं, कितनी छूट है आपके लिए। हाँ, पगड़ी के बजाय मैं ये भी अर्ज करूंगा, एक तो वो लोग हैं जो सिर्फ टोपी पहनते हैं, और बात तो कितनी शिद्दत करते हैं, कितनी शिद्दत करते हैं कि पगड़ी ना हो, मेहराब ना बना हुआ, और बड़ी मोटी पगड़ी ना हो, दो शमले पीछे ना हो, तो नमाज के आगे वो इमाम नमाज नहीं पढ़ा सकता। हज़रात फ़ुक़हा जो नबी पाक के करीब रहे हैं और अब भी करीब हैं, उन फ़ुक़हा ने जो लिखा है वो सच लिखा है, वो हक लिखा है। जिन फ़ुक़हा की किताबों को हम पढ़ के मौलवी पीर कहलाते हैं, वो फ़ुक़हा लिखते हैं कि लिबास में निस्बत कायम करना सवाब व दर्जा जरूर है, मगर मंज़लत से, माज़लत नहीं, मंज़लत से, नुज़ूल नहीं, दर्जे में कमी नहीं। सवाब है ना कोई पहने तो दर्जे में कमी नहीं आती, वरना ये टोपियां सब गुजर गई हो। हाँ, एक बात मैं जरूरत करूंगा, सर नंगे रहना। एक दफा मेरे इंतहाई मेहरबान दोस्त और काबिल सद वफा दोस्त, काबिल तारीफ दोस्त बावफा डॉक्टर बशीर अहमद साहब मैनचेस्टर वाले, उनके घरों में बैठे हुए, और मेरे दस्ते रात हाजी नजीर अहमद साहब उसी महफिल में थे। डॉक्टर साहब भी इस महफिल बरबो कैफ में तशरीफ फरमा है, उनके घर बैठे हुए थे। तो वहां एक नए बुजुर्ग शख्सियत सादात में से, वो बैरिस्टर है हाशमी साहब, हाँ हाशमी साहब, उन्होंने जनाब मोहतरम डॉक्टर बशीर अहमद साहब के दौलत गदे पर खूबसूरत चाय के दौरान उन्होंने आपसे यह सवाल दार किया कि है कोई ऐसी बात आपकी नजर से गुजरी हो जो साइंटिफिक तरीके से, ये लफ्ज मुझे अच्छी तरह आपकी याद है, कि कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका बताए। तो मैंने अर्ज किया कि साइंटिफिक ना हुआ तो फिट जरूर होगा। फरमाए वो क्या है, सवाल क्या है? तो फरमाने लगे कोई ऐसी मोतबर दलील लाए कि जिससे ये साबित हो जाए कि सर पर पगड़ी बांधना, टोपी रखना, सर ढांप के रखना जरूर
کرو تو جی پہلے ہی ننگا ہوئے تو کہنے کی کہ لوگ سی پسند نہیں آیا آپ کو یہ سائنٹیفک ہوئے یا نہ ہوئے لیکن فکر ضرور ہے تو بڑے خوش ہوئے میرا خیال ڈاکٹر صاحب محترم کو یاد ہوگا کیوں ڈاکٹر بشیر صاحب محترم البتہ نماز کے سلسلے میں یہ بات ضرور عرض کروں بعض چٹ پٹے لوگ نرم مزاج تکلیف نہ برداشت کر سکنے والے نرم لوگ سر ننگا رکھیں کوئی پابندی لیکن اسی طرح نماز میں بھی کھڑے رہتے ہیں اللہ پر چلتے چلتے یہ بات ویسے ہی آ گئی من الناحیت اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے سر ننگا کر کے نماز پڑھے اس کی نماز واجب الاعادہ ہے نماز دوبارہ پڑھے یہ سائنٹیفک ہے بات وہ نماز دوبارہ پڑھے لیکن مسجد میں آئیں اور ننگے سر پڑھیں انہیں پڑھنے تو روکو نہیں آہستہ آہستہ سمجھاؤ آہستہ آہستہ سمجھاؤ ایسا نہ ہو کہ سر ٹانپتے ٹانپتے بیچارہ نماز ہی چھوڑ دے کیونکہ دین میں سمجھنا سمجھانا ایک حکمت ہے کیا نام ہے گلاسگو سے ایک ساتھی ملے حرم شریف میں احرام باندھا ہوا تھا باریک پجامہ پہنے ہوئے اس پر چادر باندھی ہوئی تھی اور باریک جرابیں اور بوٹ بھی پہن رکھا تھا تو وہ کسی عالم کے ساتھ ان کی کہیں مٹھ بھیڑ ہو گئی مسئلے پر وہ خفا ہو کے منجلات میں جا رہے تھے تو راستے میں مجھے نظر آئے تو میں نے بڑی حکمت سے کہا کہ یہ جس غصے میں جا رہے ہیں کسی سے پالا پڑا ہوگا میں نے کہا حاجی صاحب تو بڑے تن کے دیکھتے میری طرف کیا بات ہے میں نے کہا کہ موسم بڑا گرم ہے اتنی گرمی آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہوگی میں نے کہا ناجائز ہے آپ کو تو گرمی لگ رہی ہوگی مجھے آپ بڑے تن آسان اور بڑے نرم مزاج اور گرمی نہ برداشت کرنے والے آرام پسند معلوم ہو رہے ہیں اور جرابیں اور یہ بھوک اور یہ احرام آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی فوراً بولے آؤ دیکھا نہ کہو کہنے لگے مولویاں دین تنگ کر دیتا ہے مولویاں دین تنگ کر تو میں نے فوراً کہا کہ اتنا بھی کہ کھلا نہیں جرا عاشق ہونا کی تو ہے کوئی تو ذہن کرو اللہ کے وہ فوراً ہنس پڑے کہنے لگے گل بڑی مزدار ہے تو میں نے کہا یہ پھر میں چپل دیتا ہوں کہنے لگے میں انگلینڈ تو آیا گل ایسی کوئی نہیں لیکن جس طرح انہوں نے مجھے سمجھایا وہ گل میرے وارے ہی نہیں آئی میں وہیں کھڑا رہا وہ چپل پہن کے آئے ہم دونوں نے چائے پی تو میں نے یہی آئے پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں نے یہی آئے پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو یہ پاؤں ننگا کر کے یہاں اللہ کے حضور چلنا اسوہ رسول ہے کہنے لگے بہت بھی خوشی ہوئی کہاں رہتے ہیں آپ نے کہا گھر تو آج تک نہیں ملا گھر نہیں ملا مالک اللہ اور اللہ کا محبوب جب پسند کرے گا تو گھر عطا فرما دے جن میں رہتے ہیں وہ اپنا کب ہے جس گھر سے نکالے جائیں وہ اپنا کب ہے اپنا تو وہ ہے کہ جہاں خلود ہو پھر دائمی ہو جس گھر میں جا کے یہ خطرہ ہو کہ نکالے جائیں گے وہ اپنا کب ہے اس لیے میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ جو اس دنیا کو اپنا کہتے ہیں اس دنیا کے وارث جو آپ کے آبا و اجداد گرامی تھے وہ بھی تو مالک سے کہاں گئے نکالے نہیں گئے گھروں سے دولت چھینی نہیں گئی ان سے تو آپ کے آبا و اجداد گرامی سے اگر یہ گھر چھین لیے گئے ہیں تو آپ سے نہیں چھینے جائیں گے تو یہ گھر اگر آپ سے چھینے گئے تو آپ مالک کا بھی
अल्लाह ने फरमाया कि जिसको आप अपना समझते हैं ये आपका नहीं है, बस हक जानो कि इन अल्लाह यरसुहा इबादी अस्सालिहून, जमीन मेरी है, मैं ईमान वालों आप भी मेरे हैं, मैं तुम्हें ऐसी जमीन का मालिक करूंगा जहां से कोई तुम्हें निकालेगा नहीं, मगर वो मेरी जमीन है, वो मेरी जमीन है, उसमें सिर्फ मेरे ही रहेंगे। जिस जमीन को आप अपना समझते हैं, मिल्कियत मेरी है, कब्जा इस पर मेरा है, मगर इस पर बुत परस्त भी रहते हैं, आतिश परस्त भी रहते हैं, मुशरिक भी रहते हैं, मुवाहिद भी रहते हैं। यहां से जाके इसको मैं अलहदा करूंगा। जब इरादा करूंगा, मुनकरीन के लिए अलहदा जगह रखी है, अपने दोस्तों के लिए अलहदा जगह रखी है, आपके शोले दुश्मनों के लिए है, अपने महबूब के दुश्मन के लिए, और जिसने मेरे महबूब को अपनी जिंदगी का हार बना लिया है, उसके लिए मैंने अलहदा महल संभाल के रखे। और जिसको जो महल मिलेगा उसी का सारी उम्र उसी का हो जाएगा और नहीं निकाला जाएगा। अपनी मर्जी से सैर को जाए, अपनी मर्जी से वापस आए, मगर आने जाने का सवाल क्या, जहां तक नजर जाएगी उसी का महल होगा, जहां चाहेगा वहीं पहुंचेगा, जो चाहेगा वही खाएगा, मगर ये किसके लिए है, जो मेरा होगा। और मेरा कौन होगा, जिसको देखकर मुझे अपने महबूब की अदाएं नजर आएगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। दुनिया की भी कोई इज्जत है? अरे जिस इज्जत को फना हो वो इज्जत है, जिस दौलत के लिए चोर खड़ा हो वो अपनी है, जिस आंख के नूर के एक हद है, ये भी कोई काबिल तारीफ है। फरमाया आंख वो कि जो मुझे देखे, आंख वो जो मुझे देखे, और जो मुझे ना देख सके तो जो मुझे देखता है उसको देखे। हम तो उसको देखने से रहे। ई चश्मे के मंदारम जमालत रा नमेश आई, बराए दीदने रुए तो चश्मे दीगर अंबाए। ये आंखें जो हमारी हैं, जो घोड़ा गधा, औरत मर्द, बच्चा बूढ़ा, काफिर मुशरिक, यहूदी नसरानी, नेकी गुनाह, बुराई, अपना बेगाना, सब कुछ देखे, ये निगाह वो हो कि जो वाहिद हो, जो वाहिद ही को देखे, जो एक हो और एक ही को देखे। ई चश्मे के मंदारम जमालत रा नमी शायद, बराए रुए, बराए दीदने रुए तो चश्मे दीगर अंबायत। तुम्हें देखने के लिए और आंख चाहिए। हमने सूफिया मौलाना नियाज़ अहमद साहब जाते हुए कह गए थे, अपनी तकरीर के दौरान कह गए कि कुछ वक्त मुराकबे का होता है और कुछ आंख मिलाने का। मैं इसी बात पर फिर अर्ज कर दूं कि जब तक मुराकबा मुकम्मल ना हो आंख नहीं लगाई जा सकती। जब तक मुराकबा मुकम्मल ना हो आंख नहीं लगती। जो आंखें लगती हैं बुझा दी जाती हैं, लेकिन जिसके मुराकबे के बाद आंख खुले वो उसकी आंख होती है, वो उस आंख से अपने जलवे को देखा था। इसलिए मुराकबा में मुराकबे में बैठते कि मुराकबा आंख बंद करते हैं। इसलिए टांगा गुजरे तो पीछे दौड़ती है, साइकिल वाला जाए तो पीछे दौड़ती है, औरत गुजरे तो पीछे दौड़ती है, बच्चा जाए तो पीछे, और कोई घंटी खड़काए तो उधर देखता है, कोई रेडियो आ गया तो उधर देखता है, टीवी आए तो उधर देखता है, टीवी आए तो उधर देखता है, मर्द आए तो उधर देखता है। ये जो हर जगह दौड़ने फिरने वाली आंख है, इसको बंद करो, बंद करो। क्यों बंद करें? इसलिए कि ये आंख ऊपर है, आगे देखती है, अंदर देखने वाली आंख नहीं है। फरमाया इसको बंद करो। जब ये बंद हो जाएगी तो अंदर वाली खुद खुल जाएगी, अंदर वाली खुलेगी, वो बात भी अनफुसी की, क्योंकि वो अंदर है, अंदर वाली आंख खुलेगी। वो आंख दुनिया के चीजों को नहीं देखती, वो उसी के लिए है, लेकिन चूंकि ये बंद नहीं होती इसलिए वो नहीं खुलती। मुराकबे में इसको बंद करो ताकि वो खुल जाए। जब वो खुले तो वो उसी के लिए है, लेकिन वो यक वक्त खुदा को नहीं देखती, हर किसी नहीं देखती। भाई जी गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वक्त ज्यादा हो गया, आप घबराए तो नहीं है? मैं बात पूरी कर लूं? अभी तो वक्त बाकी है दोस्तों। अभी तो हमने रूह को पहले के साथ खिलानी, रूह को अभी तो दस्तरखान बिछला है ना, अभी तो
لے جانا ہے. جب روح کی غذا مکمل ہوگی تو پھر جسم کے لیے سوچیں گے, اس کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, روٹیاں تیار ہیں. تو آپ کو بچت وقت دو غذائیں مل رہی ہیں, جسم کی غذا بھی اور روح کی غذا بھی. یوں سمجھو دنیا کی عزت کی غذا اور آخرت کی قبولیت کی غذا, یہ دونوں مل رہی ہیں غذائیں. بائجی کے بستانی رحمت اللہ علیہ قرب کی منزل پہ چلے گئے تو عرض کیا الہ العالمین عرش سے بھی تو آگے نکل آیا ہو, تو پھر بھی نظر نہیں آتا, تو بتا میں تجھے کہاں پاؤں؟ اللہ نے فرمایا واپس جانے والی گال ہے. موسیٰ نہیں دیکھ سکے, تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے؟ واپس جاؤ, میں عہد کر کے آیا ہوں, رہوں نہ رہوں تمہیں دیکھوں گا. نہیں مستاوی, تم مجھے اچھے لگتے ہو, مجھے نہیں دیکھو. تم مجھے اچھے لگتے ہو, نہیں دیکھو. اچھا لگتا ہوں تو پھر پردہ اٹھاؤ, نہیں تم سے کام لینے ہیں, پردہ نہیں اٹھاؤ. اچھا لگتا ہوں پردہ اٹھاؤ, پیار کرتے ہو تو چہرہ دکھاؤ. اللہ نے فرمایا پھر میں اگر اس طرح پردہ اٹھایا نا تم نہیں رہو, میں تمہیں مشورہ نہ دوں, واپس جاؤ, واپس جاؤ. ایک طریقہ بتاؤں, وہ یہ کہ نور نبوت کے جلوے جمال نبوت اس کا پردہ لے کے آؤ تاکہ تم مجھے دیکھ بھی سکے اور برداشت بھی کر لے. اسی لیے صوفیاء نے فنا فی الرسول کی شرط لگائی. خدا سے ملنا ہے, جی ہاں, تو فنا فی الرسول. خدا کو ملو گے تو پھر فنا فی الرسول. تو جو درمیان سے ذات رسالت کو نکال کر خدا کو ملنا چاہتے ہیں, حکم ہے ان کو, کیونکہ میرا مکان نہیں, پھرتے رہو بدنصیب کو, پھرو مرتے تک تمہیں نہیں. یہ اس لیے انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا کہ جو یوں ہی پھرتے ہیں تاکہ ساری عمر ان کو دیدار ملے ہی نہ. ویسے بھی تو کنگر آدمی عاشق, اور میں بھی ان کے عقیدے کا آدمی ہوں. بڑی پیاری بات فرمائی. جو لوگ براہ راست ملنا چاہتے ہیں نہیں مل ہی نہیں سکتے, اس کی جگہ ہی نہیں, کہاں تلاش کرو. فرمایا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت میں گم ہو جائیں گے اور اپنے اور خدا کے درمیان نور نبوت کی چادر لے کے جائیں گے. اس چادر کی وساطت سے خدا کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی, باتیں بھی ہو جائیں گی, جان بھی بچ جائے گی. دوسری ملاقات کے لیے پھر سیکنڈ اپوائنٹمنٹ بھی ہو جائے گی. اور جو براہ راست جانا چاہتے ہیں ملتا ہی نہیں, اور اگر کسی کو مل بھی جائے تو پھر وہ جس کو ملتا ہے پھر وہ ہی آگے ملتا ہی نہیں, پھر وہ نہیں ملتا. تو جن لوگوں کو فنا فی الرسول ہونے کے بعد خدا ملتا ہے, یہ سب صادق ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ان کے ساتھ کاروبار دنیا متعلق کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب نائب رسول ہوتے ہیں, سب بدلا سکتا. اور جن لوگوں کو فنا فی الرسول کے بغیر خدا کے جلوے نظر آ جائیں یہ سب مدہوش قلندر ہو جاتے ہیں. یہ نماز پڑھے نہ پڑھے انہیں کوئی نہ فتویٰ نہ تقویٰ, نہ ایک کسی نے بیلی نہ انہوں نے کوئی بیلی, نہ یہ کسی کا ساتھ کرے نہ ان کے ساتھ کوئی دے, علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, کاش کے اس وقت میاں صاحب کی روح خوش کرنے والے یہ شعر پڑھتے تو مزہ ہی آ گیا ہوتا. جنہ ایک فٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلال. مدلال اس مٹکے کو کہتے ہیں جس میں خالص شراب ہوتی ہے,
कलंदर दाखिल हो गया। एक ट्रेन खड़ी हुई किसी स्टेशन पर, तो कलंदर दाखिल हुआ। कलंदर तो अजीब गुप्तड़ी, प्राणी, मक्खियां कुछ साफ उसके, तो किसी ने अपने डब्बे में बैठने न दिया, तो उन्होंने लंबे लंबे डब्बे में लंबा डब्बा उसमें बैठे हुए थे। तो वो दौड़ता हुआ आज तक हर दिन मुझे कहने लगा कि याद रखे इसमें बयान को नहीं देना, ये साढ़े की चीज आवड़ सी मुझे अच्छी तरह याद है। इन्हें कोई बयान नहीं देता, इन्हें साढ़े की आगे बढ़ना। अच्छा हम तो चुप हो गए। चलता आया हमारे, मैं और अलदीन साहब दरमियान में हम बैठे हुए थे, दो साथी इधर उधर, हमारे सामने आके खड़ा हुआ। तो मैंने कहा अलदीन साहब आपकी पेशेंट वही पूरी होगी, ज्यादा सीट खाली करो। क्योंकि आप ही ने तो कहा था ना कि इधर आएगा, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, ज्यादा सीट खाली करो। उनको पकड़ के मैं उठाया, मैं उनको कहा बिस्मिल्लाह बैठिए। इतनी शाइस्ता शुस्ता बरजस्ता उर्दू में कलाम फरमा रहा था वो शख्स, इतनी मोटी सुर्ख आंखें। उसने सर घुमा के जो 3 दफा मुझे देखा ना, तो इस तरह लगा कि ये दिल लेके जाएगा ये शख्स। समझ तो आ गई कि ये बंदा इधर का नहीं। मोहताज हो गया मैं, तो मैं बात बदलने के लिए फौरन कहा उस किनारे से यहां तक आप चलते आए, किसी ने आपको बैठने नहीं दिया, क्यों इस गुदड़ी की वजह से तंग होते हो? फेंक इस मुसीबत को, उठाओ फेंको बाहर। कहने लगा मेरे अजीज सुनो, 25 साल से यही गुदड़ी मेरे कंधे पर है। मैं कई दफा ख्याल आया कि फिर दिल से आवाज आती है, इसने 25 साल तेरे साथ गुजारे, लोगों के धक्के खा के इसको छोड़ना चाहते। 25 साल से ये गुजरी मेरे पास है, लोगों की ताना तानी, सबको शतम, धक्के मुक्के, ये कुछ देख के छोड़ना चाहते हो? तो फिर मैं इसको अपने सीने से लगा देता। और फिर ये ख्याल आता है माशर के दिन अल्लाह के हुजूर जब खड़ा हूं, मैं गुजरी शायद मेरे साथ ही होगी, कहीं रब ये फरमा दे कि फरिश्तों दुनिया वालों ने इसे बड़ा सताया, अब मैं भी सताऊं, तुम भी सताओ, छोड़ दो उसको जाने, छोड़ दो। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इख्तियार का जमाना है, क्योंकि महरम से मुजरम बनने में एक नुक्ते की देर होती है। मुजरम बन के गुजारा करना और आसान, मुजरम बन के गुजारा करना आसान है, महरम बन के जीना बहुत मुश्किल है। समझे मेरी बात? आप उस सफर के राही हैं कि जिसकी इंतहा पर उस बंदे को महरम बना दिया जाता है। अभी से महरम होने के आदाब सीखो। उस बंदा खुदा मर्द कलंदर की वो बात अब भी मेरे दिल में अमानत की तरह महफूज है। मुजरम बन के जीना आसान है, महरम बन के जीना मुश्किल है। तो जिसने महरम बन के जीना है, अपने ख्याल से जियोगे तो मुजरम हो जाओगे, उसी के होके जियो आसान हो जाओगे। बस न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। फकीर बनना किसी लिबास का नाम है, किस बड़ी गाड़ी का नाम है, किस बड़े पकड़ का नाम है फकीर बनना? जुब्बा और तस्वीर हाथ में, जुब्बा पहन के तस्वीर लटका लेना, इसका नाम है फकीर होना? नहीं यारो, नहीं दोस्तों, एक लम्हा भी अंदर के एतबार से, एक लम्हा भी अपने महबूब से गाफिल न होना फकीर होने की निशानी। एक लम्हा भी दिल को खुदा से गाफिल न करना, रसूल आजम से एक लम्हा भी दूरी कबूल कर लेना फकीरी नहीं है। कुर्ब की मंजिल में रहो, लिबास जो मर्जी रखो, मर्द फकीर बाश खुला देता तारीदार, शाही लिबास पानो, शाही लिबास पहनो, दिल से फकीर होके रहो। और फकीर का ये माना नहीं कि मिस्कीन होके लेट जाओ जमीन पर, फकीर का माना यह है कि हर वक्त कुर्ब की मंजिल में रहो और हर वक्त याद हक का दिया जलाते रहो, महबूब की यादों का चराग चला और उसकी रोशनी में कदम कदम जिंदगी का सफर तय कर सकते।
नाम पे जियो, उसी के नाम पे मरो, खूब कमाओ खाओ, खूब कमाओ खूब खाओ, मगर बेखबर होके नहीं फकीर हो। बस इतनी सी बात है। और उसके लिए जो ज़ाविया अमन मुतय्यन कर दिया गया है वो यही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। एक बाग है जिसके ये फूल खिले हुए हैं, हर एक की ईमान की खुशबू मुझ तक पहुंच रही है। मैं इस महक की कैफियत में बहुत बातें कह गया अपने उन उलमाए किराम जिनके मवाद हसना से मैं और आप फैजियाब ना हो सके, मुझे यकीन है वो महसूस नहीं फरमाएंगे। तो जिन हजरात ने हमें फैजियाब फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें और खिताब ना फरमा सकने वाले इन सब को अपने कुर्ब में जगह था, ज़ाहिरी तौर पर भी बातिनी तौर पर भी। और जो हम सामीन के सारे हम सबको वो दर्जा तो नहीं मिलता जो उनको है, लेकिन खुदा और नबी पाक हमें अपना बना के रखे, बस अपना बना के रखे। इसके बाद दो बातें ऋषि अच्छा, मैंने समझा था कोई सवाल है, इसलिए मैंने दफक के ये रुका ले लिया था। ये मुझे याद है, आखिर में सुनाऊंगा। खैर की बात है, यहाँ कोई खतरानी नहीं, आपको यकीन है। बस जो उसकी मन का मन दखल किस तरह आयत है, नहीं पूरी आयत पढ़ो, मन दखल मजा ही आ। एक तो काबे शरीफ के मतलब है कि जो काबे शरीफ की हुदूद में दाखिल हो गया, गोया उसको अमन में दाखिला मिल गया। तो जो काबे के काबा के हुजूर उसकी कमरी में छुप गया, उसका क्या हाल होगा? ये तो बैतुल्लाह की बात है। मन दखलहु काना आमिना, जो हरम में दाखिल हो गया, हरम मक्का में अमन मिल गया। तो जो काबे का काबा है, जो उसके दामन के साए में आ गया, उसका आलम क्या होगा? बहरहाल अमन की जगह है, क्योंकि उनकी याद में बैठे हुए। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि आप हजरात ने मिलकर यूनिवर्सिटी बनवाई, इसमें कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, आजाद कश्मीर के दोस्तों ने हिस्सा लिया, दुबई वालों ने भी हिस्सा लिया, अमरीका वालों ने भी हिस्सा लिया, और सबसे ज्यादा आज तक इस जमात ने खिदमत की है वो इंग्लैंड में रहने वाले दोस्तों ने खिदमत की है। आपको नैरिशी कोर्स में भी यूनिवर्सिटी के लिए जितने लोग आते हैं पूछने के लिए, उनके सामने भी आकर जब भी जिक्र जमील होता है तो मैं आप दोस्तों का जिक्र करते हुए मुझे बड़ी दिल में ठंड महसूस होता है, बड़ी ठंडक, बड़ी राहत महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने वाकई खूब कुर्बानी की। और मैं फिर यकीन दे रहा हूँ कि आपकी जितनी रकम थी, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की लगन ने मुझे ख्यानत नहीं कर, मैंने आपका एक पाउंड भी जाया नहीं किया। आपको दावत है, जब भी आप तशरीफ लाए अपनी बनाई हुई यूनिवर्सिटी का नजारा करें। मैं उस पर तज़किरा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के मुदरा गए मदनी उमूर के वजीर जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब मोहतरम, वज़ीर तालीम वफाकी हुकूमत के वज़ीर तालीम वफाकी वज़ीर तालीम जनाब सैयद गौस अली शाह साहब, और चंद एमएनएस हज़रात तशरीफ ले गए। और देखते ही उन्होंने स्टेज पे आके कहा कि कौन है वो इंसान जो इस इमारत को देखकर यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं करेगा। उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट मंजूर करे या न करे, हम इसे मंजूर करते हैं। जो चुनाचे उसका इस अगले महीने एनओसी मिल रहा है, चार्टर उसका हो गया है, तो उन्होंने गालिबन 25 नवंबर को चार्टर की मंजूरी का ऐलान करके हमारे हवाले कर देना है। तो यूं समझिए कि आपकी यूनिवर्सिटी तकरीबन अप्रैल में हमने दाखिला दिया, मई में हमने दाखिला दिया, और उसका चार्टर नवंबर में उसकी मंजूरी और चार्टर मिल गया है। और हमने किसी यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक नहीं किया, उसकी कहीं एफिलिएशन नहीं की, सिर्फ
अजहर यूनिवर्सिटी के साथ उसका इल्हाक हो चुका हुआ है। मैंने इस साल इंशाअल्लाह जाना है ताकि शेखुल अजहर से मिलने के बाद कुल्लियतन फैसला कर दिया जाए। इस वक्त जो तलबा पढ़ रहे हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, काफी वक्त है। बस कुछ बच्चे छठी में दाखिल हैं, बाद बच्चे 11वीं में, आइंदा हम 7वीं पास बच्चे लेंगे, क्योंकि इसके 3 दर्जे कर दिए गए हैं। मुहियुद्दीन इस्लामी स्कूल, मुहियुद्दीन इस्लामी कॉलेज और मुहियुद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी। 3 दर्जे, 3 स्टेज हैं इसके। इस वक्त 21 असातिज़ा जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आइंदा साल हमारे पास 72 उस्ताद होंगे और 500 तलबा होंगे। 6 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के हम शुरू कर रहे हैं और 7वां हमने MA इस्लामियात का कर लिया है, ताकि फाजिल उलूम इस्लामिया के बनकर निकलें और उन्हें दुनिया की यूनिवर्सिटियां कबूल करें। और 7 फैकल्टीज जो हम जारी कर रहे हैं, हर एक में 7 उस्ताद होंगे। 22 पहले हैं, 49 ये होंगे वाइस चांसलर को छोड़कर, और उनकी 1 साल की तनख्वाह सिर्फ असातिज़ा की 70 लाख रुपए बनती है। आप अंदाजा लगाएं कि जिस यूनिवर्सिटी के सिर्फ असातिज़ा पहले सिर्फ सन 99 की तनख्वाह उस्तादों की 70 लाख रुपए जितने मुलाजिमीन उनकी बनती है, आइंदा तो और बढ़ जाएगी, उसकी आइंदा और बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल महसूस न फरमाएं कि मैं ज्यादा वजन डालूंगा। जितना कुछ आप अदा कर रहे हैं उससे कम लूं या न लूं, ये तो मेरी और आपकी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं लूंगा। आप खुश हुए कि नहीं? पिछली दफा मैं चंद दिनों के लिए आया था, तो मैं एक टाउन में गया, उसके दोस्त यहाँ बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा। तो एक बुजुर्ग आके बैठे, तो आते से मुझे कहने लगे, पीर जी, जी जनाब, इस बारी कोई जल्दी आइए हो। तो हम तकरीबन दोनों ही घबराए हुए थे। कोई बड़ी तावल की ताजे इस बारी जल्दी आइए। मैं कहा जिस गलों तुस घबराए हो वो कोई 3 महीने बाद उसी होगा। तेरा खैरी अब मेरा। तो बहरहाल वो भी खुश हो गया। आप इस बशारत, इस मुसर्रत, इस मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने अपनी दौलत में से एक हिस्सा निकाल कर एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। उस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए हमारे लोग आए रावला कोर्ट से, DC, SP, DFO वगैरह वगैरह, कमिश्नर और एक जस्टिस, उनके साथ उनका अमला, पुलिस के लोग, ये सारे आए। यूनिवर्सिटी देखने के बाद उन्होंने मुझे दावत दी, पीर साहब हमारा खाना कबूल करें। मैं कहाँ? रावला कोर्ट। मैंने कहा रावला कोर्ट वाले लोग तो पहले कभी इतने मेहरबान नहीं हुए। ये जो इस दफा मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी तो नहीं है? ये भी कोई नहीं। मैंने कहा आपके लिए नहीं, मेरे लिए। ये नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जनाब मोहतरम DC साहब के यहाँ सुबह का नाश्ता था। नाश्ते के बाद फारिग हुए, पूरे जिले के ऑफिसर साथ हुए, जनाब सैर करने के लिए चलते हैं। मैंने कहा पहले तो सैर की कभी दावत नहीं हुई, चले चलते हैं। एक जगह ले गए पहाड़ी के ऊपर, बड़ी खूबसूरत जगह, 142 कनाल रकबा, पूरे का पूरा अति खूबसूरत रकबा। कहने लगे कि ये हम यूनिवर्सिटी को पेश करते हैं, आप कबूल करें। मैंने कहा कोई शर्त नहीं लगाओ तो मैं कबूल करता हूं। कहने लगे छोड़ो शर्त को, पीर साहब आप बादशाह आदमी है, कबूल करें, हम यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। मैं कहा कबूल है। तो DC साहब तकलीफ शुरू कर दी कि आपने ऐलान किया था कि हम मेडिकल कॉलेज ही बनाएंगे। हाँ बनाएंगे, फिर उसके लिए ये जमीन है, आपने कबूल कर ली है। और यूनिवर्सिटी के उस यूनिवर्सिटी का एक शोबा यहाँ और एक मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा डी साहब मेडिकल कॉलेज को आसान चीज नहीं। कहने लगे हम बड़े वाकफ हैं, आप ऐलान करें। मैंने कहा मुझे सोचने दें। कहने लगे सोचा तो फिर आप हाथ से निकल जाएंगे, ऐसे ही ऐलान करें ताकि पूरी गवर्नमेंट गवाह बने। मैंने कहा फिर दुआ के बाद फैसला हो कि वहां इंशाअल्लाह 2 साल के बाद मेडिकल कॉलेज के संगे बुनियाद रखा।
یہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. ہم یہاں بھی ایک بڑا ہسپتال بنانا چاہتے ہیں اور ایک وہ بڑا ہسپتال کہ جس میں پوری آزاد کشمیر، پورے آزاد کشمیر کے 2 ضلع کے 7 ضلع جو بنے ہیں، یہ ہماری آزاد کشمیر کے 2 ضلعوں کے 7 ضلع، یہ 7 ضلع میں جتنے بچے میڈیکل یا انجینئرنگ کے لیے تو خیر جگہ ہو گئی، میڈیکل کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں، ایبٹ آباد سے لے کر پشاور سے لے کر کراچی تک مارے پھرتے ہیں. کتنی سفارش ان کے بعد جا کے کسی 2-4 آدمیوں کو پورے علاقے کی طرف سے 2-4 سیٹیں ملتی ہیں، وہ بھی بڑی مشکل. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آزاد کشمیر اور پنجاب کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ختم کریں. اگر آزاد کشمیر کے کراچی جاتے تھے، کیوں نہ کراچی، جام شروع، لاہور، پنجاب کے لوگ آزاد کشمیر میں میڈیکل کالج میں اپنی سیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواستیں پیش کریں، ہمیں داخلہ ملنا چاہیے. تو ان دونوں علاقوں کو ایک کر دیا جائے. تو ہم نے اعلان کر دیا کہ 2 سال کے بعد وہاں انشاءاللہ میڈیکل کالج ہوگا اور سینکڑوں بچے وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اس وقت جو درس نظامی ہم پڑھا رہے ہیں، صبح سویرے وہ بچے، میں آپ کو ایک لطیفہ سنوں. ایک صوبیدار صاحب آئے، یہ آخری باتیں، صوبیدار صاحب آئے تو اپنے بچے کو داخل کروائے. میں نے کہا صوبیدار صاحب بچے کو داخل کرانے کے بعد آپ خوش نظر نہیں آتے. کہنے لگے گل یہ داخل تو ہو گیا کیونکہ بچہ ضد کرتا ہے، خطرہ یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوا تو میرا نہیں رہنا. میں جاسی کرے پاسے جی تو جانا ہے تو ادھر ہی جاسی. میں کہ یہ راہ چنگا نہیں. کہنے لگے جی مسئلہ دے والے میں گیا جی مسئلہ دے والے حضرات لوگ سے بیدارہ بڑا پڑوسی ہے، کوئی 4-5 میل کے فاصلے پہ رہتا ہے اللہ کا بندہ. یہ بچہ 2 مہینے کے بعد واپس گیا. ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ سنی کیا ہے، بریلوی کیا ہے، دیوبندی کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، شیعہ کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم کسی چکر میں نہیں پڑتے، ہم صرف اور صرف فقر نبی کا درس دے رہے ہیں بس. اور وہی بچہ سب سے پہلے جب صبح اسمبلی ہوتی ہے تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہے. گھر گیا تو باپ کو کہنے لگا کہ تیری تقریریں مجھے پسند نہیں، فجر کی نماز میں نے پڑھی ہے تو نے نہیں پڑھی. وہ 6ٹھی کا طالب علم ہے اور پھر اس کے سامنے 2 شعر قصیدے بردہ شریف کے پڑھ کے واپس آیا. کہنے لگے بدل جاؤ زندگی، اب ہے جو میں جدھر میں جا رہا ہوں. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ایسے آدمی آئے راولہ کوٹ سے، کہنے لگے کہ ایسے ہم بچہ داخل کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ بچہ اس ایک آدمی کا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، رسالت کا منکر ہے، قرآن کو اپنے گھر میں نہیں جانے دیتا. یہ بچہ ہے، اس کو داخلہ ملے گا. تو میں نے برجستہ جواب دیا اس کو کہ بچے کو داخلہ ملے جانا ملے، لیکن اس کے باپ کو ہم بالکل داخلہ نہیں. اس کے باپ کو کہو کہ آ جاؤ تیری سیٹ خالی ہے. وہ بچہ اب 3 دفعہ گھر گیا. اس کا باپ آیا، اس نے کہا کہ پیر صاحب اس بچے کی زندگی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلطی پر. یہ وہ چیزیں جو دیکھی جا سکتی ہیں. صبح سویرے بچے اٹھتے اور بچوں کی زندگی دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی. میں آپ کو اس لیے یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ وہ نامہ اعمال آپ کا بڑا سرخ و سفید، بڑا نورانی ترتیب دیا جا رہا ہے. آپ نے جو کچھ کیا خدا نے اس کو قبول فرما دیا. آئندہ سال میں چاہتا ہوں کہ انگلستان سے صرف 30 بچے ہم پہلے سال لیں اور وہاں او لیول اے لیول کا ہم نے انتظام کر لیا ہے. ماہرین ہم نے مہیا کر لیے ہیں اور کمپیوٹر آئندہ سال شروع ہو رہا ہے، اس کی پوری تدریس دی جائے گی. 30 بچے انگلستان سے لینے ہیں. جو بچے آئندہ سال آئیں وہ بریڈ فورڈ حاجی زمان صاحب سے رابطہ کریں، لندن والے میر صاحب فروخ صاحب سے رابطہ کریں اور ہائی ویکم والے حاجی عبدالغنی صاحب، مولانا صاحب زادہ جیلانی صاحب اور حاجی عبدالرزاق صاحب سے رابطہ کریں. اسی طرح برمنگھم ایک مرکز کے ساتھ اور مانچسٹر سے کوئی آنا چاہے تو حاجی نذیر احمد صاحب اور ڈاکٹر بشیر احمد صاحب سے رابطہ کریں. ناٹنگم میں اسی طرح حاجی بشیر صاحب اور حاجی قمر صاحب ان کے ساتھ رابطہ کریں. خلیفہ
साहब हैं अपने मकसूद साहब, और अगर पीटरबरा से कोई आना चाहे तो खलीफा हाजी फजलुद्दीन साहब हैं, हाजी खलीलुर रहमान साहब हैं और हाजी अकबर साहब हैं। इन तीनों के साथ रब्ता हर टाउन में जो मोतबर दोस्त एक एक दो दो जो हर मामले में पेशकदमी रखते हैं उनके साथ रब्ता करें। वो उनके कागजात हम फार्म यहाँ भेजेंगे ताकि यहाँ से वो फार्म पुर करके भेजें तो दाखिले की सूरतें आसान हो जाए। 30 बच्चे पहले साथ देंगे, पहला ख्याल है 20, और अगर ज्यादा हो गए तो 30 तक देंगे। और आपको ये भी बात बताऊं कि मेरे पास चेचनिया से तलबा, उनके फोटो, उनके कागजात, उनके पासपोर्ट कापी मेरे पास पहुंच आई है। वजीर दाखिला से बात करने के बाद हम उन्हें दाखिला दे रहे हैं। 10 बच्चे काजाकिस्तान से उनके फोटो, उनके पासपोर्ट कापी अक्स उनका, और केनिया से 15 बच्चों के पासपोर्ट के फोटो हमारे पास आ गए हैं। हमारे तस्वीर के कि हमें दाखिला दिया जाए। ना वहाँ हमने इश्तिहार भेजा, ना हमारा वहाँ कोई अखबार है कि किस तरह खबर फैली, आपको दिया अल्लाह ताला है। और आइंदा साल हम उन बच्चों को, अफगानिस्तान से बच्चों की एक खेप आ रही है, हमने उनको भी उस तरह से किया कि जैसे भी होगा पहला साल मुश्किल होगा, न वो उर्दू समझेंगे और न हमारे उस्ताद पश्तो समझेंगे। अल्लाह ही जाने इनका अशर क्या होगा। और यही हालत चेचनिया वालों का, वो बिगड़ी मखलूक है, आपने जोश और जज्बे वाली, खुदा जाने कहाँ कहाँ एक्सीडेंट होते जाएंगे। लेकिन बाहर क्या हमने दाखिले का इंतजाम कर लिया है। पश्तून उलमा और उस्ताद रख लिए हैं, अरबी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से अरबी में, अरबी को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में तर्जुमा करने वाले जय्यद उस्ताद हमने ले लिए और हर फील्ड में काबिल तरीन उस्ताद ले लिए हमने। ये सारी बातें मैंने इसलिए की, मैंने आपका बहुत वक्त लिया है इसलिए कि रमजान में फिर मेरी आपसे खूबसूरत मुलाकात होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। लेकिन मैं पंजाब में एक दफा तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा कि दर्जी ऐसे कोई अजीब लोग हैं कि उन जालिमों ने कमीज पर जब जेब लगानी चाहिए तो दिल के ऊपर लगाई। ताकि जो शहर जाए बस चली, तो निकालने में कितना जोर लगता है, दिल को बड़ी परेशानियों से वास्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ मैंने ये सूरत नहीं देखी, यहाँ अमन की हालत है और अच्छी हालत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमजान में मेरी आपसे एक खूबसूरत मुलाकात होगी। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में थोड़ी वसअत हो, उसकी मस्जिद बाकी है, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल बाकी है, उसके दफातर बाकी हैं, लेबॉर्ट्री हॉल बाकी है, लेबॉर्ट्री मुकम्मल हो गई है। यहाँ बर्मिंघम में एक दोस्त ने 30 कंप्यूटर पेश किए हैं जो रमजान में मैं पैकिंग करा के वापस भिजवा दूंगा। शायद वो दोस्त यहाँ होंगे, मेरे वो साथी है बड़े प्यारे, खालिद नाम है उनका। 20 कंप्यूटर उन्होंने कहा कि मैं जहाँ से जाऊँ, तो मैंने कहा मैं जैसे भी वे भी कबूल कर। लेकिन वो आदमी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये गलों हंसे वो गल नहीं। बाहर क्या है, रमजान शरीफ में ज़कात अदा करें रमजान में जाकर, ताकि सवाब दुगना नहीं 10 गुना ज्यादा हो जाए और उसमें आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मुस्तहिक है, उसके लिए तैयारी करें। आइंदा आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की तामीर, मस्जिद की तामीर और हॉल, लेबॉर्ट्री का सारा इंतजाम हो गया है, उसके कमरे तैयार करने और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना है, मस्जिद बनानी है और असातिज़ा के लिए कमरे बनाने और कम अज कम कुतुब खाना ठीक ठाक खरीदना है। उसके लिए अभी से दिल को समझाओ कि हम ठीक ठाक गुजारा करें और रमजान में आपसे माकूल खिदमत करवानी है। नबी के दीन का झंडा उठा के रखो, बस जिस तरह आपने उठाया है इसे नीचे ना दें। मकबूजा कश्मीर से जिस कदर मुहाजिरीन आए हैं उन बच्चों की मखलूक हाली, कसमा कुर्सी, यतीमों जैसी जिंदगी देखकर दुख हुआ और मौलाना ज़िया सादिक साहब और मौलाना मोहम्मद फौजखान कादरी साहब, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इन्होंने तवज्जो दिलाई और एक इस्तकबालिये में ये सारी सूरत सामने आई तो मैंने बड़े प्यार से अर्ज किया कि उन बच्चों के लिए इंशाअल्लाह दोस्त मेरी मदद करेंगे और मैं 300 बच्चों को दाखिला देकर उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनकी रोटी, उनका हिफाजत, उनकी तमाम जिम्मेदारी मैं जमात कबूल करेगी और मैं और आइंदा जाने के बाद जब नए स्कूल खुलेंगे मैं एक जगह
دنیا کی تربیت دینے کے لیے استاد مقرر کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنا کام کر رہے ہیں یہ جہاد میں مصروف ہیں۔ آپ بہت باتیں ہو گئی ہیں اور یہ اس اعلیٰ حضرت میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب ولی اکمل پیر غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ولی لاسانی ولی پیر ثانی جو میرے قبلہ والد گرامی کے دست راست تھے، قدم قدم ساتھ صرف ان کی جدائی ہوئی تو تقریباً موت نے جدائی کی، وہ بھی کچھ سالوں کے بعد پھر وہاں بھی قبر میں بھی وہ قریب قریب آ کے دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ ان حضرات کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے، ان دونوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کے عنوان پر۔ ان کے پاکیزہ خصلتیں اور ان کی عادتوں کا ایک نمونہ آپ نے دو شہزادے یہاں دیکھ لیے، آپ انہی سے اندازہ کر لیں ببید گلستان من بہار مرا، انہی کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ پیر ثانی لاسانی ولی کس کمال کی شخصیت ہوئی۔ آج بھی ان کا فیض ہمارے سر پر پہرا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں اس لیے انہیں بار بار یاد رکھتا ہوں کہ وہ مجھ پر شاید سب سے مہربان تھے، لیکن جو کرم مجھ پہ فرماتے تھے اس کی تو مثال ہی میری پیش ہے۔ کرم قدم قدم پر مجھ پہ وہ مہربانی فرماتے تھے اور فخر سے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا کرتے۔ باہر کیا یہ ان کے حضور نظرانہ عقیدت ہے کہ ان کے فیض نے ہمیں استقامت سے جینے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرات اب دل کے دروازے کھولو، حق ہو کی ذرا تھوڑی سی بستیاں اندر جانی چاہیے۔ زانو کھڑا نہ ہو، جو دو زانو نہیں بیٹھ سکتے وہ جو زانو بیٹھے چوکر مار کے بیٹھو، جو دو زانو نہیں بیٹھ سکتے وہ جو زانو بیٹھو، یہ دونوں صورتیں ادب کی ہیں۔ خواتین قبلہ عالم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر ثانی صاحب سے عقیدت رکھنے والی خواتین میری بہنیں جس قدر اس پردہ خانے میں بیٹھی ہیں وہ سب ذکر کے دوران بس اپنی اس کیفیت کو دل میں جذب کرنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ
حرکت دیں. سانس جو اندر کھینچیں گے تو اللہ خیال سے، جب سانس باہر چھوڑیں تو دل پر بھوک کی ضرب لگائیں. دائیں بائیں خیال جائے گا اس کی فکر نہ کریں، لیکن خیال کھینچ کے پھر دل کی طرف لگائیں اور یوں سمجھیں کہ میں خدا کی حضور حاضر ہوں. آنکھیں بند، توجہ دل پر. جب سانس باہر چھوڑیں بھوک کی ضرب لگائیں دل پر. آنکھیں بند، آواز میری آواز کے ساتھ ہے. ادھر ادھر نہ دیکھیں، دل کی طرف دیکھیں، اپنے دل کی طرف توجہ کریں. اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیفیت ہو سلامت رکھے، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور اس سے قبل جن لوگوں نے اپنے شہر کے حضور نذرانہ عقیدت کے طور پر کلام الہی کی تلاوت کی ہے اس کی سماعت فرمائیں۔ عبدالغفور صاحب اینڈ فیملی 1,60,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ سورہ یاسین، 300 مرتبہ سورہ مزمل، 300 مرتبہ سورہ 300 مرتبہ تاج۔ محترم مرتضیٰ صاحب ایسٹ اینڈ لندن سے ایک قرآن پاک، حاجی محمد اسحاق صاحب نوٹنگھم سے 500 مرتبہ سورہ یاسین، شیخ حاجی محمد خلیل صاحب لندن سے ایک قرآن پاک، 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ سورہ یاسین۔ چودھری محمود صاحب پیکم لندن سے ایک قرآن پاک، 50 مرتبہ سورہ یاسین، 1000 مرتبہ درود پاک۔ حاجی لال محمد صاحب، حاجی دل محمد صاحب لندن کی جانب سے 2 عدد قرآن پاک، اور اسی طرح محمد اشرف صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود تاج، درود تاج روشی اور تیسرا کلمہ سورہ اخلاص، باقی صورتیں ہزاروں میں آپ نے پڑھی ہیں، اس کے لیے اب دعا اللہ کے حضور۔ ایک قرآن پاک حاجی محمد بشیر صاحب لندن، 10 دفعہ سورہ یاسین، کلمہ طیبہ 20,000 مرتبہ حاجی محمد، ایک قرآن مجید حاجی محمد دین صاحب کی طرف سے، حاجی خلیفہ محمد نذیر صاحب مانچسٹر سے 5 قرآن پاک، یہ کس کا؟ حاجی عبدالرزاق صاحب ان کی جانب سے، ہائی بیکم والے، ان کی جانب سے 5 قرآن پاک، 500 مرتبہ درود مقدس، درود تاج 1000 مرتبہ، درود 500، درود سنتینہ 25,000 مرتبہ، 15,000 مرتبہ، ایک قرآن پاک، ایک قرآن پاک، ایک قرآن پاک۔ مولانا منظور صاحب، مولانا محمد انور صاحب کی جانب سے 3 قرآن پاک، ایک قرآن پاک، 1,000 درود پاک، 3 قرآن پاک، 3 قرآن پاک، ایک قرآن پاک، ہاں ایک قرآن پاک، ماشاء اللہ۔ حاجی عزیز صاحب ایک قرآن پاک، حاجی عزیز صاحب ایک قرآن پاک، حاجی افطار صاحب ایک قرآن پاک، 25,000 پاک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف صاحب اپنے بورڈر سے قرآن پاک جی، 2 قرآن پاک سورہ یاسین، اس کے علاوہ 2 مرتبہ، ماشاء اللہ۔ کیا ایک قرآن پاک آپ کی طرف سے، اللہ قبول فرمائے، 27 پارے قرآن پاک جی ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ علماء کرام اور خلفائے اعظام سے گزارش ہے 6 مرتبہ سورہ یاسین کہ آپ اس میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے خصوصی خیال رکھیں اہتمام سے۔ یہ ہے صاحب قرآن پاک، جزاک اللہ، خدا قبول فرمائے۔ نوٹنگھم سے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حاجی منیر صاحب ایک قرآن پاک، حاجی عبدالرزاق صاحب ایک قرآن پاک، بہت آپ کی ایک قرآن پاک، حافظ صاحب ایتلے سے 4 قرآن پاک، ماشاء اللہ، 1 لاکھ مرتبہ خوشی، الحمدللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ۔ آئندہ جس قدر موردین احباب اور دوست خلفاء اور بالخصوص نئے حدیث سے متعلق جتنے بھی علماء اور باقی محبت اور پیار کرنے والے علماء کرام ہیں، وہ اپنے اپنی مساجد میں زیادہ ہی تو ایک قرآن
सोहरवर्दी चिश्ती, इन सबको सवाब पहुँचा कर फिर मौला शरीफ बाजी साहब और फिर मसायद खान साहब क़िबला, आला हज़रत क़िबला आलम और आला हज़रत क़िबला आलम सानी साहब और पीरी इमाम रब्बानी साहब, इनको यह सवाब पहुँचा कर इनके मरातब अल्लाह बुलंद फरमा के इन सब के बगैर आप सब की मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। दुनिया में जितने नवाहिदी दोस्त अजीज औरतें मर्द बच्चे बूढ़े जवान दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सबकी कब्रों पर खुदा नूर की बारिश फरमाए। हज़रात गिरामी अब इसी से दुआ मांगे। अल्लाह करीम बहुत गुनाहगार है, अल्लाह करीम बहुत गुनाहगार है। मिलजुल के तन्हाइयों में तन्हा 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 मिल बैठ के इज्तिमाअन इज्तिमा इलाहुल आलमीन फर्दन फर्दन जमान जमान हम तेरा जिक्र इसलिए करते कि तन्हाई की कोई बात पसंद हो तो राजी हो जाए, इज्तिमाई दोस्तों में से किसी की कोई बात पसंद हो तो तू राजी हो जाए। हम में से कोई भी ऐसा अगर नहीं तो तेरे दोस्तों का वास्ता तेरी बारगाह में, तेरे कुरान का साहिब कुरान अलैहिस्सलाम का, तेरे उन मकबूल दोस्तों का कि जिनका नाम लेकर हम देखते हैं कि रहमतों का एक सैलाब उमड़ आता है, उनका वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह इस महफिल में जितने आए हैं इन सब पर राजी हो जा, इन सब से राजी हो जा अल्लाह, इन सब से राजी हो जा और अपने नबी को इन सब से राजी फरमा दे। अल्लाह ये बिछड़े हुए थे तुझसे तेरे महबूब से, इन्हें फिर अपनी बारगाह और अपने महबूब की बारगाह में कुर्ब की मंजिल अता फरमा। इलाही इस महफिल में जितने हैं सबके दिल जिंदा फरमा, सबकी रूहें बेदार फरमा, सबके नफ्स मुतमईन फरमा, सबके सीने रोशन फरमा, सबके दिमाग ताबनाक फरमा, सबके कलाम में नाम में जिक्र में दौलत में इज्जत में आबरू में जिक्र फिक्र में बंदगी में जिंदगी के तमाम लवाज़िमात में इन्हें बरकतें ही बरकतें अता फरमा, इज्जतें ही इज्जतें अता फरमा। अपनी याद और उसकी लगन अता फरमा, अपनी याद और उसकी मस्ती अता फरमा, अपनी याद और उसकी चाटनी अता फरमा, अपना प्यार और इश्क की आग में जलना नसीब फरमा, नबी पाक की मोहब्बत में जलना नसीब फरमा। आंखों को रोने का हुक्म दे, चेहरे को हया का नूर दे, परेशानी को सजदे जमा करने की तौफीक दे, दिल को इश्क रसूल के अंगारे, इश्क रसूल के जलवे और शरारे दिल के अंदर जमा करने की तौफीक अता फरमा। नफ्स को मुतमईन कर दे, रूह और बदन को ज़ाहिर और बातिन को अपने जिक्र की लज्जतों का आशना कर दे, हरीम किब्रिया तक पहुंचे में आसानी कर दे, नबी पाक के दरबार में कबूलियत के लिए रास्ते वसी कर दे। जो इस महफिल में आए हैं, जो मुराद लेके आए हैं, अल्लाह उनकी मुरादें पूरी फरमा। जो जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। जिनके घरों में आज तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह तुझे वास्ता अपनी रहमत का, तुझे वास्ता रहमतुल लिल आलमीन का, तुझे अपनी कुदरतों का वास्ता, तुझे शान रबूबियत का वास्ता, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जो गाफिल है उन्हें बेदारी अता फरमा, जो बेदार है उन्हें इस्तिकामत अता फरमा, जिन्हें इस्तिकामत मिली उन्हें मंजिल अता फरमा, जिन्हें मंजिल बख्शी उनसे पर्दे उठा। इलाही अपना बना के जीने की सादत अता फरमा। इलाही नबी पाक का कदागर बना, नबी पाक की सना का खूगर बना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र की मस्ती का कैदी बना। इलाही जिन घरों में बेचैनियां हैं दूर फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान हो गई उन्हें औलाद के खुशियां अता फरमा, औलाद को फरमाबरदारी की सादत नसीब फरमा। मौला जुल जलाल जिसके दिनों में जो जो मुरादे हैं, आज तुझे नबी पाक का वास्ता, तुझे रुखे बद्दुहा का वास्ता, तुझे कमली वाले की जुल्फे पाक का वास्ता, तुझे पुराने अजीम की इज्जत का वास्ता, तुझे सिद्दीक़ अकबर की सफेद दाढ़ी का वास्ता, तुझे फारूक आज़म के पैबंद लगे हुए कुर्ते का वास्ता, तुझे हजरत अली मुर्तज़ा की सहा का वास्ता, तुझे कुरान पढ़ने वाले हजरत उस्मान की शहादत का वास्ता, तुझे नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले सारे हुसैन का वास्ता, तू सबकी मुरादें पूरी फरमा दे। बायजीद बुस्तामी की वो फटे हुए कुर्ते के वास्ता, हज़रत फातिमा ज़हरा के आंसुओं का वास्ता, सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा आशिया रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक की का वास्ता, तमाम उम्महातुल मोमिनीन का वास्ता, तुझे तेरे खुदा होने का वास्ता, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा। जिक्र भी अता फरमा, जिक्र भी अता फरमा, बंदगी भी अता फरमा, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा, दुनिया की हर खुशी अता फरमा, कब्र का आराम अता फरमा, महशर की खुशियां अता फरमा, रसूलुल्लाह से मुलाकात नसीब फरमा। मरने से पहले हर उम्मती को नबी का दीदार अता फरमा। आज जो यहाँ
इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही अपने इन बंदों को इस शान से रख कि तेरे नबी के मुनकर काफिर इनको देखकर अगर इस्लाम कबूल न कर सकें तो इस्लाम पर उंगली खड़े करने की भी उन्हें हिम्मत व जसारत न हो। इनको इनकी औलाद दर औलाद सबको नबी पाक की बारगाह का सफीर और अपनी बारगाह का फकीर बना के इस यूरोप की काली रातों में इस्लाम का चराग रोशन करने की सादत उनसे बहरावर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वफ़व्विद अमरी इलल्लाह वफ़व्विद उमूरना इलल्लाह वफ़व्विद उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन कबीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फ़ग़फ़िर लना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम वफ़व्विद उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न या हाफ़िज़ या हफ़ीज़ या नासिर या नसीर सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज़ादी कश्मीर वो सुबह शुरू होने वाली है। कश्मीर आज़ाद होने वाला है। सुबह आज़ादी नज़दीक है। सुबह आज़ादी इंशाअल्लाह नज़दीक है। कश्मीर आज़ाद होने वाला है। पाकिस्तानी जितने भी कलमा गो मुसलमान हो इस्तिकामत से दुआएं मांगो और बर वक्त अपनी कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखो। कश्मीर आज़ाद होने वाला। अल्लाह अफगानिस्तान को, ईरान को इत्तेफाक, पाकिस्तान को बरकत और अरब ममालिक को कुफ्र के मुकाबले में इस्तिकामत का पहाड़ बना दे। वफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात गिरामी बैठे रहिए, एक मेरी गुजारिश सुन लें। आला हज़रत जनाब पीर जस्टिस मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर सुबह क़यामत तक नूर की बरसात जारी रखे और उनकी औलाद अमजाद को सुबह क़यामत तक मिल्लत का रहनुमा बना के रखे। उनकी किताबें यहाँ मौजूद है। अयाम असीरी की तकारीर का सिलसिला बड़े करम के नाम से, तफासीर की अज्जा जुज़े मौजूद है। जाते वक्त उनकी याद, अल्लाह का कलाम, तफसीर, नूर ही नूर है, दिलों का चैन और सरूर है। इनको साथ लेते जाएं। बड़ा मुख्तसर सा हदिया है लेकिन लाजवाब तोहफा है। जाते हुए कोई शख्स खाली ना जाए ताकि वो सिर्फ किताबों वाले खाली जाएं, आप किताबें लेके जाएं। हर आदमी तक वो जिस तरह आए थे वो उस तरह ना जाए, वो खाली जाएं, सिर्फ जो हदिया है वो लेके जाएं और ये